Welcome all of you to another class of quantum mechanics. So today we are going to discuss some more concept of quantum mechanics. In the last lecture we discussed Davison-Jomer experiment and Heisenberg uncertainty principle. ठीक है? So Heisenberg uncertainty principle says that we cannot determine or we cannot find both position and momentum simultaneously with complete accuracy. पूरी accuracy के साथ दोनों चीजें both position and momentum is not possible to find. Now let's find the determination or just find the position of particle by a microscope. ठीक है, तो अब हमने position find करनी है because Heisenberg says that both position and momentum simultaneously cannot be found with complete accuracy. Only one thing can be found out of the two with full precision, complete accuracy. So suppose we want to determine accurately the position and momentum of an electron along x-axis using an ideal microscope जिसमें और कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है. ठीक है, तो हाइजनबर्ग सेज इट इज़ नॉट पॉसिबल. दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली फाइंड करना इज इम्पॉसिबल. बट लेट्स से कि वी आर ट्राइंग. तो अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है which is given by delta x is equal to lambda upon 2 sin I. Delta x, I told you before, this delta represents the deviation, the amount of uncertainty. ठीक है, so delta x is order of uncertainty in x. x हम किसके लिए यूज करते हैं? पोजीशन के लिए. so in the x component of position of electron की motion is in one particular direction only. तो as in the figure it's showing कि एक vertical axis है, but हम उस vertical line को भी, उस वर्टिकल डायरेक्शन को भी वी आर कंसीडरिंग एज एक्स डायरेक्शन. ठीक है, बिकॉज वी नीड टू शो अ पर्टिकुलर एक्सिस. जब भी कोई डायरेक्शन में मोशन होती है वी हैव टू एसोसिएट सम एक्सिस विद इट, एक्स वाई या जेड में से, एंड एक्स इज द इजीएस्ट वन, द मोस्ट कन्वीनियंट वन, सो वी यूजली एसोसिएट इट विद द मोशन. Now in this figure what is happening, that this blue colored circle, this is electron. ठीक है, incident photon आया, almost similar to Compton effect that we studied. Incident photon ने electron को hit किया, some of its energy would be transferred to electron, due to which electron will start moving. Electron will gain some kinetic energy. तो आप ये देख सकते हैं, this is our recoiled electron. ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन था, आफ्टर फोटोन हिट्स वो रिकॉयल करके इस तरह रिकॉयल करता हुआ जाएगा. सो वी कॉल इट रिकॉयल इलेक्ट्रॉन. उसको एनर्जी कहाँ से मिली? ड्यू टू द इंसिडेंट फोटोन. और फिर जो फोटोन है इट वुड हैव लेस एनर्जी देन इनिशियल स्टेज, सो इट विल ऑल्सो मूव इन सम अदर डायरेक्शन. और यहाँ पर दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन. और हमने ये जो एरो भी, स्मॉल एरो, ये जो कर्ल, बिकॉज फोटोन इज ऑलवेज डिनोटेड विद दिस वेवी पैटर्न. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा लॉन्गर है और इस केस में शॉर्टर, बिकॉज वी नो दैट आफ्टर स्कैटरिंग, और वी कैन से दैट द मोमेंट photon hits the electron or transfer some of its energy to electron and gets scattered in another direction, then that scattered photon has lesser energy than what it had in the beginning. Okay, because it has transferred some of its energy to electron. तो इसीलिए हमने उस एरो को बहुत छोटा बनाया, just to show that scattered photon has less energy. I क्या है? It's the direction, the angle, semi-vertex angle of cone of rays entering the objective lens of microscope. अब ultimately microscope के अंदर तो light rays ही enter करेंगी, और यहाँ पर light क्या है? Photon. तो photon जब hit करेगा इलेक्ट्रॉन को, and electron will, और we can say कि इलेक्ट्रॉन उसको deviate कर देगा अपने ट्रैक से, या फिर we say that after collision both electron would also start moving and photon will also get scattered in some other direction. तो अब वो जो भी एंगल बनता है
एंड ऑब्वियसली देर इज दिस माइक्रोस्कोप. ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर माइक्रोस्कोप. ओके, दिस इज योर माइक्रोस्कोप. सो यहाँ से जब फोटोन आएगा, यहाँ स्कैटर्ड हो गया, तो वो स्कैटर होके दे विल एंटर इन द माइक्रोस्कोप. बिकॉज हमें पता है आइडियल माइक्रोस्कोप लाइट रेज के हेल्प से ही वर्क करता है. वी नीड सम लाइट. Okay, so these photon will enter in the microscope but at different angles. So this I is the angle which determine the angle which these photons make while entering the objective lens of microscope. Microscope में light rays objective lens से enter करती हैं. Objective lens wider होता है, larger होता है, so that more light rays can enter inside the microscope. अब ये जो कह रहे हैं कि हमने दोनों चीज़ें मेजर करनी है, एज वी हैव सपोज्ड और अज्यूम्ड, बट द थिंग इज कि बिफोर एल्यूमिनेशन, बिफोर लाइट एंटर द माइक्रोस्कोप, वी कैनॉट मेजर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हमें खैर किसी भी सिचुएशन में नहीं दिखता, बट द मोमेंट हम स्कैटर्ड फोटोन को नहीं देख सकते, तो उससे पहले वी विल नॉट बी एबल टू नो वेदर इलेक्ट्रॉन हैज मूव्ड और नॉट. जब तक माइक्रोस्कोप के अंदर कोई लाइट नहीं पहुंचती, तब तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कह सकते. बिकॉज माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सी लाइट पहुंच रही है? इंसिडेंट पहुंच रही है या स्कैटर्ड? स्कैटर्ड. और स्कैटर्ड फोटोन क्या है? वो तब स्कैटर हुआ जब उसने इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया. एंड द मोमेंट इट हिट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो स्टार्ट मूविंग. अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, देन इट विल हैव इट्स ओन मोमेंटम. बट अगर ये स्कैटर्ड फोटोन एंटर किया ही नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें पता ही नहीं कि वेदर देयर हैज बीन एनी कोलिजन और नॉट. और हम नहीं बता सकते कि वेदर इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड मूविंग और नॉट. ठीक है, तो अगर मोशन को हम नहीं बता सकते, तो हम उसके मोमेंटम को भी नहीं बता सकते, बिकॉज जनरली मोमेंटम इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. So the scattered photon can enter the microscope anywhere between angular range plus I to minus I. तो ये हमने एक range set कर दी कि this is the angular range. That also depend on the aperture of the objective lens. जितना बड़ा objective lens है, उतना ही order में, उतनी ही range के अंदर अगर photons होंगे, they would be able to enter the microscope. उससे बाहर it's not possible. ठीक है. अब फोटोन के केस में मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला डिफरेंट है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेन एवर वी टॉक ऑफ फोटोन, देन एच इज देयर, प्लैंक कांस्टेंट विल ऑलवेज बी देयर. ओके, एंड वी नो दैट द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. और ये आया किससे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ से. डी ब्रॉगली फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. वट इज एम वी? P, momentum. तो P आ गया H upon lambda. So its x component would be delta Px 2H upon lambda sin I. ये कहाँ से आया है फॉर्मूला? जब हमने x कंपोनेंट निकाला तो हमने 2 sin I से मल्टीप्लाई कर दिया. Why? Because we have written that limit of resolution of microscope. और माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? कि कितने फाइन तरीके से वो कोई भी क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकता है. अगर दो लाइंस बहुत ही क्लोज हैं और सैंपल ऑब्वियसली बहुत ही स्मॉल होता है, तो कितना क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट, सैंपल या लाइन या एनीथिंग को ये क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकता है और आपको एज सेपरेट दिखा सकता है. ओके, so obviously distance is of importance. so यहाँ पर delta x is lambda upon 2 sin I. तो जब हमने मोमेंटम में x कंपोनेंट निकाला तो हमने ये lambda upon 2 sin I कंपोनेंट यूज कर लिया. so that's why here h upon lambda के साथ we have this 2 sin I. okay, so now x component of momentum of recoiling electron has same uncertainty delta px. अब delta px क्या है? बेसिकली uncertainty in the momentum of photon, and only we are talking about x component. So x component
और वी कैन से अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन. ये है डेल्टा पी एक्स, अनसर्टेनिटी इन एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन. अब जो फोटोन मोशन में आ रहा था, इट हैज ट्रांसफर्ड सम ऑफ इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग एंड वी कॉल इट रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो एक कॉइल की फॉर्म में मूव करता हुआ जाता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इस तरह से मूव करता हुआ जाता है. सो वी कॉल इट रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन. इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा. तो एक तरह से आप देखो एक इमेजिनरी कॉइल बनाता हुआ जा रहा है. ठीक है, हम ऐसे ही बनाते हैं कॉइल. सो इस मोशन को वी कॉल रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन. तो जो उसका मोमेंटम था फोटोन का, वो उसने सारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया. ऑलमोस्ट, not all but little bit, because we know according to law of conservation of momentum, initial momentum should be equal to final momentum. So we know that okay, initially also photon was moving, the incident photon, and after collision also both photon, which is a scattered photon now, it moves in another direction, and electron also starts recoiling in another direction. ठीक है, बट उन दोनों का सम जो मोमेंटम होगा दैट वुड बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम. तो हम कह सकते हैं कि जो भी अनसर्टेनिटी थी इन द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वो क्योंकि मोमेंटम एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है, सो सेम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी वुड बी देयर इन द मोमेंटम ऑफ recoiling electron, all due to conservation of momentum. So if this is the case, then let's take the product, because ultimately uncertainty principle में क्या है, delta x dot delta px. So we have to do that. ठीक है. So if we multiply, we get lambda upon 2 sin I, and delta px is 2h sin I upon lambda. On solving, we get this h. Now this h is definitely greater than h cut by 2. ग्रेटर है या नहीं है? वट इज एच कट बाय 2? एच कट क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई, और एच कट अपॉन 2 क्या हो गया? एच अपॉन 4 पाई. वट इज एच? 6.626 into 10 raised by minus 34 joule second. If you divide this number with 4 pi, means 4 into 3.14, that obtained number would be smaller than the ओरिजिनल एच. अगर आप किसी भी नंबर को किसी एक, चाहे वो स्मॉलर नंबर है, यू आर डिवाइडिंग इट, तो जो आपका क्वोशंट आएगा वो हमेशा स्मॉलर आएगा, बड़ा तो नहीं आएगा. इफ यू हैव नंबर 32 एंड यू आर डिवाइडिंग इट विद 2, सो क्वोशंट विल गिव यू 16. इफ यू हैव 16, you are dividing it with 2, you will get 8. If you have 8, you are dividing it with 2, you will get 4. So on dividing, we are obtaining smaller number. तो अगर आप प्लैंक कांस्टेंट को 4 पाई से डिवाइड कर रहे हो, तो जो नंबर आएगा दैट वुड बी स्मॉलर देन द प्लैंक कांस्टेंट, राइट? सो here on multiplying we have obtained h, which is definitely greater than h cut by 2. और यही uncertainty relation है. Let me show it again. Here we have this uncertainty principle, delta x delta px greater than equal to h cut by 2. If this is the case, everything is good. The uncertainty principle is verified. और हमारा आंसर क्या आया? h, which is definitely greater than h cut by 2. Okay, so this means जो भी हमने find किया, this is in agreement with uncertainty relation. So what does it tell? Because हमने ये consider किया था, read this line, that we can't measure momentum of electron prior to illumination, so there is uncertainty in measurement of momentum. Position को तो हमने कह दिया कि we are measuring it accurately, precisely. But momentum के केस में हमने कहा कि if there is no light in the microscope, we cannot measure momentum of electron. So if we cannot measure something properly, we say that there is uncertainty in the measurement. अगर आप किसी चीज को ठीक से measure नहीं कर पा रहे, you would say there is uncertainty, because you cannot say anything with surety. ठीक है? So यहाँ पर हमने वो concept use किया of Heisenberg, which says that both position and momentum cannot be measured
simultaneously with complete accuracy. तो हमने कह दिया कि अगर position, because here we started that we are going to measure position with complete accuracy, ठीक है, बट यहाँ हमने मेंशन कर दिया since we cannot measure momentum of electron with complete accuracy, so there is uncertainty. And on solving, we have got our Heisenberg relation back. So this also tells us that finding both the things simultaneously with complete accuracy is not possible. आप measure करोगे but uncertainty बहुत होगी. अगर आप both position और momentum को measure करना भी चाहते हो तो उसमें से एक में बहुत wide uncertainty होएगी और दूसरा शायद आपको precise value मिल जाए. Alright? Now let's talk about application of Heisenberg uncertainty principle. So first is non-existence of electron in nucleus. There has been a long debate about whether electron exists in nucleus or not. Well, we know it cannot because nucleus is positively charged and electron is negatively charged. So if both charges combine, they will just neutralize. Okay, and if electron neutralizes the nucleus, that means there is no nucleus and then there cannot be any atom. But atom exists and we have this notion that electron, they just don't reside in the nucleus. ये हमने पिछली classes में पढ़ा हुआ है. But now this Heisenberg uncertainty principle also verifies this. How? So let's see. First of all, radius of atom. So in general, radius of atom होता है Fermi meter में या कह लो femtometer. Femto भी बोल देते हैं 10 raised power minus 15 को, ठीक है. So it's 5 into 10 raised power minus 15 which is the radius of atom. If electron has to exist within the nucleus, तो जो डेल्टा मैक्स है यानी जो मैक्सिमम डेविएशन कह लो उसकी पोजीशन में हो सकती है वो सिर्फ रेडियस ऑफ एटम तक ही हो सकती है. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर भी रहा है तो भी मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकता है? एटम की बाउंड्री तक. एटम की बाउंड्री से बाहर तो नहीं जाएगा. बोथ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दे मेक अप द एटम. तो इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर ही है, ठीक है. एटम इटसेल्फ होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट. बट हम कह रहे हैं कि चलो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी एग्जिस्ट करता है तब भी इफ वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी यानी कि उसके ट्रैक में डेविएशन कितनी आ सकती है, चलो वो मैक्सिमम एटम की बाउंड्री तक जा सकता है बट एटम की बाउंड्री से बाहर तो नहीं जाएगा. सो एटम की बाउंड्री है उसकी मैक्सिमम डेविएशन. सो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज same which is radius of atom 5 into 10 raised power minus 15 meter. Now Heisenberg uncertainty principle is delta x delta px greater than equal to h cut by 2. So that means if one thing is maximum other thing would be minimum. अगर एक चीज को आप पूरी एक्यूरेसी से फाइंड कर रहे हो तो दूसरी चीज लीस्ट एक्यूरेट होगी, ठीक है. अब यहाँ पर वी वांट टू नो अबाउट पोजीशन बिकॉज हम फाइंड करें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस. तो वो न्यूक्लियस में है या न्यूक्लियस से बाहर है तो ये कौन डिसाइड करेगा? उसकी पोजीशन डिसाइड करेगी, ठीक है. सो डेल्टा एक्स वी वांट टू मेजर इट विद कंप्लीट एक्यूरेसी, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन मैक्सिमम इन द सबस्क्रिप्ट एंड डेल्टा पी एक्स वुड बी मिनिमम. सो दैट इज इक्वल टू h cut by 2. Now delta px becomes h cut upon 2 delta x, ठीक है. अगर हम डेल्टा x जो कि 5 into 10 raised power minus 15 मीटर है ये सब्सटीट्यूट कर दें एंड h कट की वैल्यू भी हमें पता है इट इज h upon 2 pi. h is Planck constant. So on substituting all these values we get 1.1 into 10 raised power minus 20 kg meter per second. ओके ये हमारे पास मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आ गई. इफ दिस इज द केस देन एनर्जी वुड बी p इंटू सी, मोमेंटम इंटू सी. मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है. और अगर मास इंटू वेलोसिटी के साथ आप c मल्टीप्लाई कर दो सो दैट मीन्स एक तरह से ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है. सो ऑन डूइंग दिस बिकॉज वी नो c इज 3 इंटू 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 20 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट as our answer. Okay, this is relativistic. Relativistic क्यों? Because C आ गया. जहां पर C आ जाए everything turns out to be relativistic. ठीक है, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है तो उसमें भी
जब भी कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, देन वी स्टार्ट यूजिंग द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये आ गई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 20 MeV। तो एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की 20 MeV। तो अब एनर्जी क्या होती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग सो वी यूजली टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब ये डेल्टा पी एक्स से, मोमेंटम से हमने एनर्जी फाइंड की, यानी कि उसकी मोशन की एनर्जी 20 MeV। अब अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 MeV से एटलीस्ट 20 MeV तो हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, बिकॉज it has to constantly keep moving and it has to stay in the nucleus also। बिना न्यूट्रलाइज किए it has to stay in the nucleus, और न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस भी होती हैं। सो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी तो हो, जो कि हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दी। बट एक्सपेरिमेंट्स जो वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट हैं, दे शो दैट इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय सर्टेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आपने रेडियो एक्टिव डिकेज पढ़े होंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके। सो यू मस्ट हैव स्टडीड कि बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस ही जब स्प्लिट करता है, डिके करता है, देन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। सो पीपल थिंक, वहीं से ये आइडिया आया था कि जब न्यूक्लियस स्प्लिट करता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर था? ड्यू टू दैट बीटा डिके दिस कंसेप्ट अराउज। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, theoretically calculate करके we find that if electron is staying in the nucleus, its energy should be at least 20 MeV। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो बीटा डिके लोगों ने स्टडी किए हैं, जब न्यूट्रॉन स्प्लिट करता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी हार्डली 3 to 4 MeV होती है, हार्डली, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कभी एक्सीड ही नहीं की। If this is the energy of electron, तो 20 MeV is much greater than this energy। So इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए इट्स एनर्जी शुड बी 20 MeV, वो हमने देखा। ठीक है, वी सॉल्व्ड इट प्रॉपरली, हमने रेडियस ऑफ एटम कंसीडर किया और हमें अनसर्टेनिटी से पता चला कि 20 MeV शुड बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन if it has to stay within the nucleus। But experiments prove that जब भी nuclei, unstable nuclei decay करते हैं and electrons are emitted, their energy is hardly 3 to 4 MeV, which is much smaller than 20 MeV। So this tells that electron cannot exist in the nucleus। So ये एक main application है Heisenberg uncertainty principle की। Then concept of Bohr orbit violates uncertainty principle। जो बोहर ने अपना बोहर मॉडल ऑफ एटम दिया और उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यू हैव स्टडीड दैट बिफोर। अब उसका कंसेप्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2। नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी यहाँ पर ये कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज गिवन बाय p स्क्वायर बाय 2m। इफ वी हैव टू फाइंड अनसर्टेनिटी इन एनर्जी तो हम लिखेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू p स्क्वायर को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, और व्हाट वी कैन डू इज कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो p स्क्वायर क्या देगा हमें? 2p dp। ठीक है, यहाँ पे ये जो p स्क्वायर है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बिकॉज डिफ्रेंशिएट हमें डेविएशन देता है, अनसर्टेनिटी देता है। सो यहाँ इफ यू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स तो मास तो कांस्टेंट है, सो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट, मास विल नेवर चेंज, राइट? सो हियर सोच लो कि ये dE है, उस dE को हमने डेल्टा ई लिख दिया। स्मॉल चेंज के लिए हम डेल्टा यूज कर लेते हैं।
और पी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, अगर वी डेरिवेट पी स्क्वायर वी गेट 2p dp, ठीक है, 2p dp, so that 2 will get cancelled with the 2 in the denominator, और p dp को we can write p delta p, फाइन। सो डेल्टा ई यानी कि de बन गया डेल्टा ई और p dp बन गया p डेल्टा p अपॉन m। फर्दर दिस p सिंपली जो p है दैट कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी, सो mv डेल्टा p बाय m गेट्स कैंसल्ड। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो उसको भी हमने लिख दिया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा पी, सारा कुछ डेल्टा हो गया और ये इस डेल्टा टी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। Now delta x dot delta p is greater than equal to h cut by 2. So this implies delta e dot delta t is also greater than equal to h cut by 2. और ये चीज हमने प्रूव भी की थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। This slide when we were discussing Heisenberg uncertainty principle, तो हमने कहा था कि सिर्फ पोजीशन एंड मोमेंटम ही नहीं, एनर्जी और टाइम पे भी यही रिलेशन अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ अब हमने इस चीज को ऑब्टेन कर लिया, डेल्टा ई डेल्टा टी, यही फॉर्मूला था और अब भी हमने यही ऑब्टेन किया। हेयर इट इज, ठीक है, यहां तक आ गया। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर कंसेप्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज कांस्टेंट। आपने अगर बोहर के पोस्टुलेट्स याद किए हैं तो उसमें यही होता है कि इलेक्ट्रॉन they revolve around the nucleus in certain orbits and they have fixed energy and the energy of electron is fixed in that orbit। हमने ये पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन फोटोन इज एमिटेड, या अगर वो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करके इट जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, बट व्हेन इट इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड। So if energy is fixed, then delta E is change in energy, so that would be 0। तो अगर डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 है एंड डेल्टा ई 0 हो गया, तो डेल्टा टी क्या हुआ, डेल्टा टी इज एच कट बाय 2 डेल्टा ई। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाती है, इनफाइनाइट। सो दैट मीन्स डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम दैट इज इनफाइनाइट। चेंज हो गया, अनसर्टेनिटी होगी, डेविएशन होगी, ये सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। सो डेल्टा टी को मैं स्मॉल चेंज भी बोल सकती हूँ, मैं अनसर्टेनिटी भी बोल सकती हूँ, मैं इसको डेविएशन भी बोल सकती हूँ। सो अगर डेल्टा टी इज कमिंग आउट टू बी इंफिनिटी, सो इसका क्या मतलब है कि ऑल एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन एटम मस्ट हैव इनफाइनाइट लाइफ टाइम। हर एनर्जी स्टेट का इनफाइनाइट लाइफ टाइम है, फिर तो आप किसी भी डिके के लिए या कोई भी फोटोन एमिशन या एब्जॉर्प्शन के लिए यू हैव टू वेट फॉर इन्फिनिटी। तब तक हम इन्फिनिटी तक बैठे किसी एटम को ऑब्जर्व ही करते रहेंगे, हमें तो कोई वैल्यू, कोई रीडिंग ही नहीं मिलेगी, बट ऐसा है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट्स टेल अस दैट एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम दे हैव लाइफ टाइम जस्ट 10 raised to the power -8 seconds। सी हाउ स्मॉल दिस टाइम इज। कहाँ बाय हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वी आर गेटिंग कि क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स्ड है तो टाइम, लाइफ टाइम इनफाइनाइट होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट टेल अस कि इनफाइनाइट तो दूर, 1 सेकेंड भी नहीं होता लाइफ टाइम, इट इज 10 raised पर -8 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, इतना कम लाइफ टाइम है, ठीक है। सो ये जो फाइनाइट लाइफ टाइम है इसी के कारण फाइनाइट विड्थ आ जाती है एनर्जी लेवल्स की। तो फाइनाइट लाइफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी है जो कि फाइनाइट है एंड दिस लीड्स टू फाइनाइट एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो यहां पर जो बोहर का कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज कांस्टेंट, ये फेल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उस केस में लाइफ टाइम जो टाइम है वो इनफाइनाइट आ रहा है, जबकि इनफाइनाइट लाइफ टाइम नहीं होता। Experiments tell that excited states don't have infinite lifetime।
तो इसने बोहर के कॉन्सेप्ट को भी फेल किया। नाउ कम्स द टू स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। वही है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हियर वी हैव दिस लेजर सोर्स। सो लेजर मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि वी आर सेंडिंग फोटॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओनली। ठीक है, मोनोक्रोम मीन्स सिंगल कलर। सो देन वी हैव दीज टू स्लिट्स। दो स्लिट्स के बाद 1 मीटर का गैप है एंड देन वी हैव द डिटेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली लाइट अगर हम फॉल करा रहे हैं वो है तो फोटोन्स ही, तो इस तरह से फोटोन्स दे जस्ट गैदर, और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फोटोन्स गैदर इन द सेंटर, फिर उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ऑन बोथ साइड्स फिर आपको इक्वल नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेंगे, फिर उससे और आगे आप जाओगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे और इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ फोटोन मिलेंगे, फिर और आगे जाओ तो इस लेवल पे जैसे ऑलमोस्ट 4 है और इस लेवल पे ऑलमोस्ट 3, तो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे एंड देन जस्ट 1 तो हमारे पास वो पैटर्न आ जाता है वेयर वी हैव द ब्राइटेस्ट फ्रिंज इन द मिडल, और हमारे पास इस तरह से बैंड्स आ जाते हैं। सो दिस इज ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट डार्क। सो रेट ऑफ फोटोन अराइवल इज 2 × 10⁶ पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 × 10⁶ फोटोन्स हिट कर रहे हैं। टाइम लैग बहुत ही कम है, यानी कि उन हिट किया और पैटर्न ऑब्टेन हुआ। ठीक है, या कह लो कि फोटोन वहां से एमिट हुआ और वहां पर हमें पैटर्न मिला। हमने देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंस्टेंटेनियस होता है, देयर इज नो टाइम लैग, तो इसमें भी टाइम लैग है 0.5 × 10⁻⁶ सेकेंड, वेरी स्मॉल, हम तो मेजर कर ही नहीं सकते। सो फॉर नेकेड आई it's like almost instantaneous. The moment you switch on the laser, you get the pattern at the same moment, क्योंकि time lag बहुत कम है। And spatial separation between photons, that is 0.5 × 10⁻⁶ C, जो कि है 150 मीटर। ठीक है, this is the spatial जो gap है between photons, वो 150 मीटर है। ओके, सो नाउ 1908 में टेलर का एक्सपेरिमेंट था विच इज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद वेरी डिम लाइट। सो इंटरफेरेंस पैटर्न एमर्ज्ड आफ्टर वेटिंग फॉर फ्यू वीक्स। तो आप ये भी देखो कि एक डिम लाइट से जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ वीक्स के बाद उसको पैटर्न मिला। तब उसने ये कहा कि इंटरफेरेंस कैन नॉट बी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन, that is it cannot be outcome of destructive or constructive combination of photon। कि अगर 2-3 फोटोन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपको एक पैटर्न दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप फोटोन्स को सेंड कर रहे हो एटलीस्ट 2 तो जाएंगे और इंटरफेयर करके दे विल प्रोवाइड यू द पैटर्न। बट जो 1908 में टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ही हैड टू वेट फॉर वीक्स टू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जरूरी नहीं कि आपके पास 2 या उससे ज़्यादा सोर्सेज हों। नो, इट इज़ ड्यू टू सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच फोटोन एंड इट सेज दैट इट इंटरफेयर्स विद इटसेल्फ व्हाइल पासिंग फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन। और यही बात डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी आई थी, जब दे वर ट्राइंग टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको याद हो इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस कि उन्होंने क्या किया, इस तरह का प्रोसीजर किया कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लो प्रोड्यूस हो सो दैट एट अ टाइम स्लिट से एक ही इलेक्ट्रॉन पास हो। तो उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पास होगा तो ऑब्वियसली देयर वॉन्ट बी एनी अदर इलेक्ट्रॉन टू इंटरफेयर विद, सो नो पैटर्न वुड बी ऑब्टेन्ड, बट स्टिल दे ऑब्टेन्ड पैटर्न। एंड उस टाइम पे उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ही दोनों स्लिट से पास होके जा रहा है एंड इट इज इंटरफेयरिंग विद इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात है कि अल्टीमेटली इंटरफेरेंस को डोंट टेक इट एज कि वी हैव टू
photons या 2 particles or more. It can be with 1 particle only. एक पार्टिकल खुद के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है. यूजली इंटरफेयर वर्ड हम यूज करते हैं व्हेन अनदर पर्सन कम्स इन. यू आर डूइंग सम वर्क एंड सम अनदर पर्सन कम्स इन एंड स्टार्ट डिस्टर्बिंग यू, तो आप कहते हो कि इंटरफेयर कर रहा है या इट स्टार्ट्स इंडल्जिंग इन योर वर्क. यूजली इंटरफेयर वर्ड को यूज किया जाता है फॉर सेकेंड पर्सन. ठीक है, बट हेयर उसी कंसेप्ट को हम साइंस में भी मिस इंटरप्रेट करते हैं by taking that interference needs some second person to come in, but this is not the case. In physics, in the world of particles, they can interfere with itself also. ठीक है, and then जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में कहते थे that they might split, but the thing is that they don't split. Light detectors always show signal of same intensity. स्प्लिट नहीं होते. ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से अगर पास हो रहा है तो वो हाफ हाफ में डिवाइड होके जा रहा है, ये भी नहीं है. तो उस केस में मैंने क्या कहा था कि कंसीडर इट टू बी अ वेव. वेव स्प्लिट नहीं होती, वेव दोनों से इक्वली पास हो जाएगी बिकॉज वी ऑब्टेन सेम इंटेंसिटी ऑफ पैटर्न. तो अगर एक चीज स्प्लिट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी तो कम होनी चाहिए, हाफ हाफ में डिवाइड होगी, बट दिस इज नॉट हैपनिंग. Okay, and then slits open alternatively, यानी कि we get two overlapping single slit diffraction pattern और no two slit interference. ठीक है, जरूरी नहीं कि at a time दोनों slits से interference मिले. कई बार slits alternatively open होती है, यानी कि single slit के थ्रू भी आपको interference pattern मिल सकता है. ठीक है, इफ इट इज नैरो इनफ. एक स्लिट भी अगर काफी नैरो है, अगर आप उसको बहुत नैरो कर देते हो, एक स्लिट से भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा. देन ऐड डिटेक्टर टू डिटरमिन थ्रू विच स्लिट फोटोन गोस. अब अगर दोनों स्लिट्स में से एट ए टाइम एक स्लिट ऑपरेट कर रही है तो आप डिटेक्टर लगा सकते हो. डिटेक्टर से आप चेक कर सकते हो कि किस स्लिट से फोटोन पास हुआ, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व. ठीक है, और मैंने ये भी कहा है कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करने लग जाते हो तो वो चीज आपको पार्टिकल बिहेवियर शो करने लग जाती है. द मोमेंट यू आर ऑब्जर्विंग इट शोज पार्टिकल बिहेवियर, द मोमेंट यू आर नॉट ऑब्जर्विंग इट शोज वेव लाइक बिहेवियर. And then interference pattern only appear when experiment provides no means of determining through which slit photon pass. वही बात, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा क्योंकि वेव टाइप बिहेवियर वो शो करेगी. बट द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट बाय पुटिंग सम डिटेक्टर, तब फिर वो अपना पार्टिकल बिहेवियर शो करेगी और तब फिर इंटरफेरेंस पैटर्न भी नहीं आएगा. तब वो एज पार्टिकल की तरह ही स्लिट से होके जाएगी एंड यू विल एंड ऑल द पार्टिकल दे विल गेट कलेक्टेड एट ए पर्टिकुलर प्लेस. सी हाउ क्लेवर दीज पार्टिकल्स आर. दे नो व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग देम. The moment you start observing them, they show their particle behavior और वो जिस स्लिट से पास होंगे बस वहीं पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं. But if you are not observing them, then they show their wave behavior. In that case, they give you interference pattern. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन एंड कीप इन माइंड कि कब हमें इंटरफेरेंस मिलती है, पैटर्न मिलता है, कब नहीं मिलता. Okay, so this is a complete summary of what we have understood till now. अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या इंटरप्रिटेशन है? दैट पैटर्न ऑन स्क्रीन आर रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन्स. ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न देन दैट वुड बी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन and there is no way of finding where particular photon will strike. You cannot tell. Impossible to tell which path photon would take. ये सब बातें आप बता ही नहीं सकते. So that's why quantum mechanics is so weird, so random and so uncertain. Because बहुत सी चीजें हैं जो आप बता ही नहीं सकते. किस स्लिट से फोटोन पास करेगा यू डोंट नो. ठीक है, कौन सा पाथ फोटोन लेगा यू डोंट नो. So it all depends on photon itself. ये भी नहीं बता सकते कि एक ही फोटोन दोनों स्लिट्स में हाफ हाफ होके गया, ऐसा नहीं होता. So cannot suppose that
कि half went through one slit and half through other. This is not the case. ऐसा नहीं हो सकता. Why? Because, so this can be your question कि why we cannot suppose that half of the photon went through one slit and other half through the other. It's because same intensity of photon is obtained on the screen or pattern when we detect it, and can only predict how photon will be distributed on screen or over detector. सिर्फ हम यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते. इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन दे आर स्टैटिस्टिकल फिनोमिना. तो इसमें स्टैटिस्टिक्स लगती है, नंबर लगता है. हम इनमें डेविएशन स्टडी करते हैं. डेविएशन, एवरेज, ये सब स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हैं. एंड दे आर एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी दैट इन गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप अ पर्टिकुलर फोटोन विल स्ट्राइक ए पर्टिकुलर पॉइंट. जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, एज आई टोल्ड बिफोर दैट क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद प्रोबेबिलिटी. आप हर बात प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बोलते हो. सो हाई प्रोबेबिलिटी होगी जहां पर, वहां ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाएंगे. जहां लो होगी वहां पे डार्क फ्रिंजेस. ठीक है. तो जहां पे डार्क फ्रिंजेस है, ये नहीं कि वहां कोई भी फोटोन नहीं गया. पॉसिबिलिटी है वहां एक आधा फोटोन गया, बट उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है दैट यू आर ऑब्टेनिंग डार्क फ्रिंजेस. वहां पे बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है. बट आप कभी भी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि जहां आपको ब्राइट बैंड मिला है, मतलब यस वी हैव गॉट ऑल फोटोन्स हियर, एंड जहां पे डार्क बैंड है यू विड से दैट देयर इज नो फोटोन. नो, श्योरिटी के साथ आप कुछ भी नहीं कह सकते. यू विल ओनली से प्रोबेबिलिटी. यू विल से दैट at brighter fringes probability of finding photon is high, and in dark fringes probability of photons or probable distribution of photon is low or less. ये लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव वर्सेस क्वांटम. तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है. अगर हम पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस डिस्कस करें तो वेव थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी बैंड्स जो हैं ये आते हैं ड्यू टू वेरिएशन इन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. क्योंकि वेव थ्योरी तो वेव को लेके ही बात करेगी, तो वो कहते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो जो भी हमें इंटेंसिटी मिलता है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है ऑफ रिजल्टेंट वेव. क्योंकि वेव कैसे पहुंचती है, आफ्टर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां एम्पलीट्यूड कम होगा. तो उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर टेल्स अस द इंटेंसिटी. क्वांटम क्या कहती है, बिकॉज क्वांटम टॉक्स इन टर्म ऑफ पार्टिकल, so it says that intensity bands are due to variation in probability. See, the word probability is here. Probability P of photon striking points on screen. कि कितनी probability है कि photon will strike a particular point. ठीक है. Then role of slits. Wave theory के केस में it is to provide two coherent sources of secondary wave that interfere on the screen. हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में, हमसे जब हम स्लिट्स लगाते हैं वी से दैट स्लिट्स प्रोवाइड अस टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. ठीक है. बट इन केस ऑफ क्वांटम व्हाट इज इट, इट सेज, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल नेचर को डील करता है, सो इट सेज दैट इट प्रेजेंट टू पोटेंशियल रूट्स बाय विच फोटोन कैन पास एंड फोटोन कैन चूज एनी ऑफ द पाथ. ठीक है. सो दिस इज जस्ट द डिफरेंस how wave theory sees this double slit experiment and how quantum theory sees this double slit experiment. Okay, so that's all for today. Thank you.